عوامی مسلم لیگ کا جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کی حمایت کا اعلان۔ شیخ رشید کہتے ہیں طالب علمی کے دور سے جنوبی پنجاب کی تقسیم چاہتے تھے۔ رحیم یار خان پسندہ خطہ ہے، اس کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ آئندہ الیکشن عمران خان کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ پروموشن سے پہلے تعلیمی اسناد چیک کرائیں۔ ملتان پی ایچ ای کا فیصلہ، گریڈ 1 سے 4 تک کے ملازمین کے اسناد کی چیکنگ کے لیے کنٹرولر امتحانات کو مراسلہ جاری۔ موسم میں تبدیلی کے ساتھ ہی ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا۔ ملتان پاکستان انجینئرنگ کونسل کے دفتر میں ڈینگی مچھر کی موجودگی کا انکشاف۔ دوسری طرف شہر کی مزید 8 مقامات سے ڈینگی لاوا برآمد۔ ملتان میں گیسٹرو کا مرض بے قابو ہونے لگا۔ مریضوں میں بچوں کی بڑی تعداد شامل۔ 24 گھنٹوں کے دوران اسپتال لائے جانے والے 194 مریضوں میں 124 بچے شامل۔ ادھر بہاولپور میں گیسٹرو سے 38 افراد متاثر۔ گیسٹرو اور گرمی کے ستائے عوام کی پہنچ سے دوائیاں تو دور، لیمو بھی باہر ہو گئے۔ 80 روپے میں بکنے والے لیمو کی ٹرپل سینچری۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام۔ رمضان مبارک میں ناجائز منافع خور کیا حال کریں گے شہری، بلبلا اٹھے۔ میسی میں محکمہ ہیلتھ اور پولیس کا عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کرمپور، ٹیپا سلطانپور، 2 کوٹا سمیت دیگر علاقوں میں کارروائی کی گئی۔ 12 کلینک سیل، 1 کلینک سمیت 7 عطائیوں کے خلاف مقدمہ درج۔ ملتان مخدوم وجاہت گیلانی کی رسم کل، سید یوسف رضا گیلانی، شاہ محمود قریشی، مخدوم جاوید ہاشمی سمیت سیاسی اور سیاسی شخصیات کی شرکت۔ دوسری جانب سید یوسف رضا گیلانی کی حضرت موسیٰ پاک دربار شہید پر حاضری اور دعا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید کے نئے سجادہ نشین سید ابوالحسن گیلانی کی دستہ بندی۔ یوسف رضا گیلانی، سید غلام مصطفیٰ شاہ، سید غلام میران محی الدین نے دستہ بندی کرائی۔ شاہ محمود قریشی، سید مظہر سعید قاسمی، مخدوم افتخار الحسن بھی شریک۔ علامہ مظہر سعید قاسمی نے اختتامی دعا کرائی۔ معذور افراد کے لیے بہاولپور سے بڑی خبر، سفری سہولیات اور کرایوں میں 50% کمی ملے گی۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں تقریب کا انعقاد، 200 سے زائد افراد کو کارڈ دیے گئے۔ بہاولپور ماڈل ریلوے اسٹیشن کے سامنے ماڈل لینڈسکیپ پارک بنانے کا فیصلہ۔ پارک کی خوبصورتی کے لیے فوارے بھی بنائے جائیں گے، جبکہ بہاولپور شہر اور ریلوے کی تاریخ دستاویزات کی صورت میں عوام کے لیے رکھی جائے گی۔ کہرول پکا تحصیل بھر میں گندم کی کٹائی کا سلسلہ جاری۔ 7 باسکو سینٹرز پر گندم باردانہ کے لیے ابھی تک درخواستوں کا عمل شروع نہ ہو سکا، کسان پریشانی کا شکار۔ دوسری جانب ڈی سی مظفر گڑھ نے کہا کہ کاشتکار کو باردانہ کی فراہمی کے لیے عمل کی شفافیت اور نگرانی کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کوٹ ادو میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، دائرہ دین پناہ میں گودام و بیکریز ناقص صفائی اور مضر صحت اشیاء بنانے پر سیل۔ 24,000 لیٹر مضر صحت دودھ طلب کر دیا گیا۔ جنوبی پنجاب سمیت صوبہ بھر میں واٹر سپلائی اسکیم کا نظام بہتر ہوگا۔ میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر اداروں کے ملازمین کی جاپان میں ٹریننگ کا فیصلہ۔ محکمہ پبلک ہیلتھ نے متعلقہ اداروں سے ملازمین کے نام مانگ لیے۔ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں مستقل وائس چانسلر تعینات نہ کیے جانے کے معاملے پر طلباء کا احتجاج۔ یونیورسٹی گیٹ پر 26ویں روز بھی دھرنا۔ ڈیرہ غازی خان میں محکمہ اطلاعات کے فیلڈ اسسٹنٹ زراعت انسپیکٹرز کا احتجاجی دھرنا 26ویں روز بھی جاری۔ مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ۔
बहावलपुर मुख्तलिफ महकमों में गुज़श्ता 20 सालों से काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी या मुस्तकिल न किए जाने के खिलाफ एहतजाजी रैली। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के रहनुमा भी शामिल। मियांवाली इलाका कादराबाद की गली नंबर 5 में गंदे पानी का जौहर, नालियां बंद, हर तरफ गंदगी के ढेर, राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना। मुतादिद बार दरखास्तों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अहले इलाका महकमा आबादी की गफलत। मियांवाली के इलाके रोकरी में थल किनाल का पुल टूट फूट का शिकार, दोनों पर भी दरारें पड़ चुकी हैं। किसी भी वक्त हादसे का खदशा। शहरियों का पुल की जल्द मुरम्मत का मुतालिबा। मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में 7 मई से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास। महकमा सेहत, पुलिस, एजुकेशन, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। महकमों की जानिब से कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। बहावलपुर यजमान में गला मंडी की तोसी के लिए मामले पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग। डीसी की तोसी फौरी तौर पर मुकम्मल करने और ताजरों के अलाटमेंट के लिए मद्देनजर मैरिट की हिदायत। चितोई मौसम गर्मा की पहली बारिश ने मैपको की कारकर्दगी की कलाई खोल दी। बारिश की वजह से बिजली की हाई वोल्टेज तार टूट गई। सड़क पर पड़ी तारें किसी भी वक्त बड़े साने का सबब बन सकती हैं। राहगीर परेशान। वाला थाना सिटी की हदूद में मुबैना तौर पर सास का बहू को आग लगाने का वाकया। कार्रवाई न करने पर वर्षा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, मुकदमा दर्ज। बहावलपुर मारी शेख जुमरा में मौजूद गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर से हाई वोल्टेज की तारें मौजूद। अहले इलाका का स्कूल के तुलबा के साथ एहतजाज, रोड ब्लॉक। गुज़श्ता रोज स्कूल में काम करने वाला मजदूर करंट लगने से झुलस गया। सखी सवर ट्राइबल एरिया तुमल लगारी में बच्चे स्कूल की सहूलत से महरूम। क़याम पाकिस्तान से अब तक कोई स्कूल कायम नहीं किया गया। कबायली अवाम का बच्चों के हमरा एहतजाज। वज़ीर आला हमें भी तालीम दो, स्कूल दो के नारे। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट जहानिया का नाखवानदगी के खात्मे के लिए ऐसे इकदाम। नवाही इलाका पोल 14 में मजदूर बच्चों के लिए स्कूल कायम कर दिया गया। तकरीब में इलाके की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और आईपी प्रोजेक्ट को सराहा। बहावलपुर मुतालिक केसेस में अदम पैरवी के बायस खुआहान पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद। एहलकारों में कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर शामिल। अदालत की जानिब से आइंदा समात पर एहलकारों को पेश होने के अहकाम जारी। डिस्ट्रिक्ट बार में सदर और अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज हमीदुद्दीन खान की आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। सदर बार मलिक जफर इकबाल एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी सरदार तारिक खान ने हल्फ लिया। मुल्तान में करप्शन की शिकायत पर असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन के रीडर का वापस पुलिस में तबादला। रीडर आबिद हुसैन पर मुख्तलिफ केसेस में फ्री कैन से रिश्वत तलब करने का इल्जाम था। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कोट मिटन दरबार हल्का ख्वाजा गुलाम फरीद के मजार पर 5वां फरीदी रोमाल डे मनाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन कुरेजा, ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा समेत दीगर मौजूदीन इलाका की शिरकत। ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरेजा कहते हैं कि आज के दिन को मनाने का मकसद सूफिया कराम की तालीमात को उजागर करना है। और यौम विलादत बसादत नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मरकती तकरीब का दरबार सखी सवर में इनकाद। महकमा औकाफ, पुलिस अफसरान और सहाफी बिरादरी की शिरकत। मुल्क की अमन और सलामती के लिए दुआएं और मिठाई तकसीम। Transmission was brought to you by तो क्यों ना एक कप और हो जाए बदर टी। नेस्ले नीडो फोर्टीग्रो, सीखते जाओ बढ़ते जाओ। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। हेडलाइंस आपने जानी, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए।
नेस्ले नीडो फोर्टिग्रो, सीखते जाओ बढ़ते जाओ। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। तो क्यों ना एक कप और हो जाए। बदर टी। अली कहाँ है? आ रहा होगा पीछे, थक क्यों जाता है? होमवर्क भी पूरा नहीं किया, डांट पड़ी है। आज फिर? कल से मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। क्या हुआ? अली इतनी जल्दी थक क्यों जाता है? कहीं आयरन की कमी तो नहीं? इसे नेस्ले बुनियाद पिलाओ। जिसमें शामिल इजाफी आयरन के साथ विटामिन सी आयरन की कमी को दूर करने में मदद करे। बाकी सब कहाँ है? वो तो बहुत पीछे रह गए। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। ओरिएंट रेफ्रिजरेटर की 10वीं सालगिरह का जश्न मनाओ और सैकड़ों कीमती इनामात जीतने का मौका पाओ। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। नेस्ले नीडो फोर्टिग्रो, सीखते जाओ बढ़ते जाओ। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। तो क्यों ना एक कप और हो जाए। बदर टी। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ खानदान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो खुदा की गिरफ्त में आ चुके हैं। इक़्तिदार खतरे में होता है तो उन्हें जमहूरियत याद आ जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अमीन की इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने जलसे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि उनके जलसे से पहले जलसागाह के बाहर पानी छोड़ दिया गया। उन्हें ऐसी हरकतों से फर्क नहीं पड़ता। रहीम यार खान पसमानदा खिता है, इसलिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ वोट को इज्जत देने की बात करता है। फौज और अदलिया के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल हो रही है वो बाइस तशवीश है। नवाज शरीफ पहला सियासतदान नहीं जो जेल जाएगा। आज नवाज शरीफ जो है वो वोट की इज्जत दो की बात कर रहा है। जितना वोट नवाज शरीफ के हाथों जलील हुआ है, बर्रे सगीर में इतना वोट कभी जलील नहीं हुआ। आइंदा इलेक्शन के हवाले से शेख रशीद का कहना था कि अवामी मुस्लिम लीग पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। मुल्क की तबाही ब्यूरोक्रेसी करप्ट होने से हो रही है। जस्टिस के घर में एक रात में 2 दफा फायरिंग होना और एक डीसी को पंखे से लटका देना कौन सा निजाम है? कोई आदमी सोच सकता है कि जस्टिस एजाजुल हसन के घर पे एक रात में 2 दफा फायरिंग की गई हो? जिस मुल्क के जस्टिस के घर में एक दिन में 2 दफा फायरिंग की हो, वहां गरीब की बेटी किस तरह महफूज रह सकती है जी? जो फैसला सादर करने वाली कुव्वत है, गुजरांवाला के डीसीओ को उन्होंने पंखे से लटका दिया। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल साजिश के तहत फौज को बदनाम किया जा रहा है। नवाज शरीफ बैनुल अक़वामी एजेंडे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल्स ने किसानों के जितने पैसे देने हैं उतने में नई शुगर मिलें लग जाएंगी। चीफ जस्टिस कितने इश्यूज पर नोटिस लें। खत्म नबूवत कानून में तब्दीली के बायस शरीफ फैमिली खुदा की पकड़ में आ चुकी है। छोटे मोटे चोर सालों से जेलों में हैं, जबकि अरबों की चोरी करने वालों को कोई नहीं पूछता। उन्होंने कहा कि वो तालिब इल्मी के दौर से ही जनूबी पंजाब की तकसीम चाहते हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहम्मद अमीन रहीम यार खान। अब कुछ बात कर लेते हैं गंदम की फसल के हवाले से। मुल्तान में तेज बारिश की वजह से गंदम की फसल शदीद मुतासिर हुई है, जबकि गंदम के दाने में नमी आ जाने के बाद थ्रेशिंग का अमल भी ताखिर का शिकार हो गया। मुल्तान में हुई मूसलाधार बारिश जिसकी वजह से हुई गंदम की तैयार फसल मुतासिर और कटाई का अमल भी मुतासिर हुआ। मुल्तान में हुई मूसलाधार बारिश जिसकी वजह से हुई गंदम की तैयार फसल मुतासिर और कटाई का अमल हुआ मजीद ताखिर का शिकार। ज़राई माहिरीन का कहना है कि मजीद बारिश हुई तो गंदम को फंगस लग सकती है, जबकि अब तैयार फसल पर बारिश हो जाने से गंदम की पैदावार और क्वालिटी भी मुतासिर होगी। माहिरीन का मजीद कहना था कि काश्तकारों को चाहिए कि गंदम में नमी के कम करने के लिए हार्वेस्टिंग का अमल शुरू किया जाए और गंदम की कटाई के बाद गंदम को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाए ताकि गंदम को बारिश का मजीद पानी मुतासिर न करे और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके गंदम को स्टोर में पहुंचा दिया जाए। कहरोड पक्का तहसील भर में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल पास्को सेंटर पर गंदम बारदाना के लिए दरखास्तों का अमल शुरू ना हो सका। किसानों को मुश्किलात का सामना है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अरशद के मुताबिक 21 अप्रैल से दरखास्तें लेने का सिलसिला शुरू होगा।
مقام میں کسانوں نے گندم کی کٹائی کر لی ہے، لیکن ابھی تک باردانہ تقسیم کرنے کا عمل شروع نہیں ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد ارشد کا کہنا ہے کہ باردانہ کی تقسیم کے لیے درخواستوں کا مرحلہ 21 اپریل سے شروع ہوگا، جو 25 اپریل تک جاری رہے گا۔ 25 اپریل کو حکومتی پالیسی کے مطابق دن 11 بجے قرعہ اندازی کی جائے گی اور میرٹ پر لسٹیں آویزاں کر دی جائیں گی۔ سیڈ سینٹر 50,000 باردانہ کاشتکاروں میں میرٹ پالیسی کے تحت دیا جائے گا اور 7 پاسکو سینٹرز کے لیے 4 لاکھ بوری باردانہ کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر محکمہ ہیلتھ کوٹ ادو متحرک ہو گیا۔ تحصیل بھر میں عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 20 سے زائد عطائیوں کے کلینک سیل کر دیے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کوٹ ادو میں چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس کے بعد محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں متحرک ہو گئیں۔ خفیہ ایجنسیوں کی نشاندہی پر ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر طارق جمشید کی تحصیل بھر میں عطائیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ کوٹ ادو، سناوا چوک، سرور شہید اور دائرہ دین پناہ میں 20 سے زائد عطائیوں کے کلینک سیل کر دیے گئے۔ سیل کیے جانے والے کلینکس میں عاشق کلینک، فقیر نور کلینک، حسیب کلینک، گشکوری کلینک، شبیر کلینک، معظم کلینک، یاسین ہسپتال، الطاف کلینک اور لطیف کلینک کو سیل کر کے 12 عطائیوں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے 6 عطائیوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر طارق جمشید کا کہنا تھا کہ خفیہ ایجنسیوں کی نشاندہی پر کارروائی کی جاتی ہے۔ کسی کو بھی انسانی جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں۔ ایسے درندوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، جس سے ہیلتھ کے شعبہ میں بہتری آ رہی ہے۔ ادھر پی ایف اے کی بات کریں تو کوٹ ادو میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی منہ سے دودھ اور غیر معیاری اشیاء بنانے والے کارخانوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ 24,000 لیٹر ناقص دودھ تلف کر دیا گیا۔ متعدد کارخانے بھی سیل کیے گئے۔ ادو کے نواحی علاقے دائرہ دین پناہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اینگلو ملک شاپ پر چھاپہ مار کر 24,000 لیٹر موسے سے دودھ قریبی نہر میں ضائع کر دیا۔ شہر اور گردنواں میں مزید کارروائیوں کے دوران ایک گودام اور بیکری کو ناقص صفائی اور موسے سے اشیاء کی بنا پر بھی سیل کر دیا گیا۔ بیکری پر نمکو اچار ایکسپائری نکلنے کی کارروائی بھی کی گئی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم کا کہنا تھا کہ ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر محکمہ ہیلتھ کوٹ ادو متحرک ہو گیا۔ تحصیل بھر میں عطائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 20 سے زائد عطائیوں کے کلینک سیل کر دیے گئے، جبکہ 12 کے خلاف مختلف مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ کوٹ ادو میں چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس کے بعد محکمہ ہیلتھ کی ٹیمیں متحرک ہو گئیں۔ خفیہ ایجنسیوں کی نشاندہی پر ڈی ڈی ایچ اور ڈاکٹر طارق جمشید کی تحصیل بھر میں عطائیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ کوٹ ادو، سناوا چوک، سرور شہید اور دائرہ دین پناہ میں 20 سے زائد عطائیوں کے کلینک سیل کر دیے گئے۔ سیل کیے جانے والے کلینکس میں عاشق کلینک، فقیر نور کلینکس اور دیگر بھی شامل ہیں۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے 6 عطائیوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر طارق جمشید کا کہنا تھا کہ خفیہ ایجنسیوں کی نشاندہی پر کارروائی کی جاتی ہے، جس سے ہیلتھ کے شعبہ میں بہتری آ رہی ہے۔ محکمہ آبپاشی میاں والی کی غفلت کے باعث روکڑی میں تھل کینال کا پل انتہائی مخدوش ہو گیا۔ پل کسی بھی وقت خوفناک حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ زبیر ہاشمی کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین ضلع کونسل گل حمید خان کے آبائی علاقے کے پل کی حالت سے وہ بخوبی واقف ہیں۔ پل کی حفاظتی دیواریں دونوں طرف سے ٹوٹ چکی ہیں۔ پل کے ستونوں میں بھی بڑی بڑی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ ایسی حالت کے باوجود ہر طرح کی ہیوی ٹریفک پل سے گزرتی ہے۔ گندم کا سیزن ہونے کی وجہ سے ٹریکٹر ٹرالیوں کی آمد و رفت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پل کی جلد مرمت نہ کی گئی تو کوئی بھی سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ یہ پل ٹوٹتا جا رہا ہے، کسی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہماری محکمے سے اپیل ہے کہ اس کی جلد سے جلد مرمت کی جائے۔ یہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں گزرتی ہیں اور آج کل گندم کا موسم ہے، اس لیے یہ پل کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہماری محکمہ سے یہی درخواست ہے کہ پل کی مرمت کی جائے۔ وزیر آبپاشی پنجاب امانت اللہ خان شادی کھیل کا تعلق بھی میاں والی سے ہے، جنہیں خود ہی اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے۔ کیمرہ مین نوید شہزاد کے ساتھ زبیر ہاشمی، میاں والی۔ خبر شامل کریں مظفر گڑھ سے، جہاں پر شہر کے وسط سے گزرنے والی گنیش مائنر نہر میں تاحال گندگی کے ڈھیر موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بھل صفائی کے باوجود بھی نہر میں سیوریج کا پانی اور گندگی ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر بھر کے سیوریج کا پانی اور گند تاحال گنیش مائنر نہر میں ڈالا جا رہا ہے، جس کے باعث نہر کے اطراف میں رہائش پذیر لوگ تعفن زدہ ماحول اور مچھروں کی بہتات سے پریشان ہیں۔ گزشتہ دنوں عوامی دباؤ کے تحت محکمہ انہار کی جانب سے نہر کی تھوڑی بہت
बहुत बहाल सफाई तो कराई गई, ना तो गंदगी के ढेर खत्म हो सके, ना ही सीवरेज का पानी डालने का सिलसिला थम सका। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और महकमा नहार के आला हुकाम से नहर की बहाल सफाई कराने और गंदगी और सीवरेज का पानी डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का मुतालिबा किया है। खबर शामिल करें मुजफ्फरगढ़ से, जहां पर मियां वाली के इलाके कादराबाद की गली नंबर 5 में गंदगी के ढेर मौजूद हैं। नालियां बंद हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कादराबाद की गली नंबर 5 की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। इस हवाले से अहले इलाका का कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया से वफूद की सतह पर मिल चुके हैं। जुलूस की सूरत जाकर म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया को दरखास्त भी दे चुकी है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से हमेशा वादे ही किए गए और कोई भी वादा पूरा ना हो सका। बच्चों और खवातीन को गली से गुजरते वक्त इंतहाई दिक्कत का सामना होता है। अहले इलाका का मजीद कहना था कि सीवरेज के पानी और गंदगी की वजह से हर तरफ ताफुन फैला हुआ है। गंदे पानी की वजह से कई अमराज भी फैल रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट जहानी मजदूर बच्चों में फरोग तालीम के लिए कोशा हमियारी तालीम फराहम करने के लिए सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। जहानिया में चाइल्ड लेबर के खात्मा के लिए हुकूमत पंजाब का IP प्रोजेक्ट जारी है। चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट खानेवाल की जानिब से कुल 14 वर्कशॉपों पर काम करने वाले बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए लेबर एजुकेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। मुफ्त किताबें, कॉपियां और एजुकेशन किट्स तकसीम करने की तकरीब भी मुनक्किद हुई। तहसील कोऑर्डिनेटर IP प्रोजेक्ट मलिक कमर जमान ने खसूसी शिरकत की। ऑफिसर इमरान असगर ने मौजूदीन के हमरा बच्चों में स्कूल बैग तकसीम किए। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि इनका मकसद चाइल्ड लेबर के खात्मे के साथ साथ मजदूर बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करके मुआशरे का मोअज़्ज़िज़ शहरी बनाना है। तकरीब में इलाका की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और हुकूमत पंजाब के चाइल्ड लेबर के खात्मा के अहसन इक़दाम को सराहा। मज़ीद खबरें भी होंगी इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए। नेस्ले नीडो फोर्टीग्रो, सीखते जाओ बढ़ते जाओ। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। तो क्यों ना एक कप और हो जाए बदर टी। एक्टिंग में तो सब एक्सपर्ट मानते हैं, पर घर में तारीफ होती है मेरी खास मिक्स चाय की। पूछें कैसे? पत्ती को जोश दिया, एवरीडे पाउडर मिक्स किया और खास मजेदार मिक्स चाय के 3 कप तैयार। खास मिक्स चाय का एक्सपर्ट बनना है तो ट्राई करें नेस्ले एवरीडे। छोटा पैक बड़ा मजा। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। भाई बेगम की पसंद के रंगों का ख्याल रखना है और क्वालिटी पे भी नो कॉम्प्रोमाइज, इसीलिए आज फिर से अपने घर डायमंड पेंट्स ही करवा रहा हूँ। डायमंड है तो क्या गम है। Diamond Paints, the #1 selling national brand. गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। नेस्ले नीडो फोर्टीग्रो, सीखते जाओ बढ़ते जाओ। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। तो क्यों ना एक कप और हो जाए बदर टी। हम बात करेंगे कि महकमा सिविल डिफेंस को किन किन मसाइल का सामना है। कभी कभी आवाम की तरफ से रेडी साहिबान की तरफ से हम पर पथराव किया जाता है, तो कुछ हमारे रजाकार जख्मी भी हो जाते हैं। उसके बावजूद लेकिन हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। सबसे ज़्यादा मुश्किलात हमें पब्लिक की तरफ से पेश आती हैं कि एक हादसा तो होना होता है, अल्लाह की तरफ से होता है, हो जाता है, लेकिन लोग उसमें बहुत कम तावन करते हैं। हम बात करेंगे बम डिस्पोजल स्क्वाड के अमले के हवाले से। माइन डिटेक्टर कहते हैं, जमीन के अंदर कोई चीज़ होगी 18 इंच या 12 से 18 इंच, उसको ये सर्च कर लेगी। कोई जान का खतरा जिस तरह होता है तो उनकी क्या इंश्योरेंस है, कोई ऐसी कोई पॉलिसी है, इसके वाले से भी हमें बताइए। खुदा न खास्ता नागहानी मौत हो जाए ड्यूरिंग ड्यूटी, कोई अलग से कोई इंश्योरेंस नहीं है जो होनी चाहिए। देखिए रिपोर्टर्स डायरी हफ्ते की रात 8:05 पर सिर्फ रोही पर।
بات کرتے ہیں پولیو مہم کے حوالے سے۔ مظفر گڑھ میں پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا گیا۔ مختلف محکموں نے اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر آفس کی کمیٹی روم میں ہونے والے اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر سیف انور نے کی، جس میں محکمہ صحت، پولیس، ایجوکیشن، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ مختلف محکموں کی جانب سے انسداد پولیو مہم کے دوران کارکردگی سے ڈپٹی کمشنر کو آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کو بتایا گیا کہ گزشتہ پولیو مہم کے دوران 8,68,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے ہیں۔ سی ای او ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر شاہد نے بریفنگ کے دوران بتایا کہ رواں ماہ پولیو مہم کے دوران 24 والدین نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے سے انکار کیا، جن کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اجلاس میں 7 مئی سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے، جہاں پر لیگی ممبر صوبائی اسمبلی عمر جعفر کی زیر صدارت اجلاس کا اہتمام کیا گیا۔ مزید دیکھتے ہیں بیورو چیف عاصم صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں ممبر صوبائی اسمبلی عمر جعفر کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں اقلیتی ایم پی اے کانجی رام و دیگر لیگی نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں عوامی مسائل، ترقیاتی کام و عام انتخابات کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ ایم پی اے عمر جعفر کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ حلقے میں الیکشن کمپین بھرپور طریقے سے کی جائے گی۔ ہم نے اپنے دوستوں سے، سپورٹر سے اور جو ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے ڈسکس کیے کہ ہم نے آگے الیکشن کیسے لڑنا ہے اور کیسے ہم نے آرگنائز کرنا ہے۔ اقلیتی ایم پی اے سیٹ کانجی رام کا کہنا تھا حکومت پنجاب نے اقلیتی برادری کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ عام انتخابات میں اقلیتی برادری لیگی جماعت کا بھرپور ساتھ دے گی۔ وابڈا میں اسی طرح دوسرے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں تمام جاب جو ہے کوٹا وہ مل رہی ہے، معذور کوٹا ہے اس میں بھی مل رہی ہے، مطلب کہ منارٹی کی جو ہے۔ اجلاس میں لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ عام انتخابات میں جیت کے لیے بھرپور کمپین کریں گے۔ الیکشن کے بعد حلقے میں مزید ترقیاتی کام بھی کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ This clock is brought to you by آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں رحیم یار خان سے، جہاں پر ممبر صوبائی اسمبلی محمود الحسن چیمہ کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ مزید تفصیلات عاصم صدیق کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان میں ممبر صوبائی اسمبلی محمود الحسن چیمہ کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں یونین کونسل دہے کے چیئرمین غلام رسول ببر خان، وائس چیئرمین اکمل خان سمیت دیگر نمائندے بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں 2018 کے الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ جو ہمارے کیے ہوئے ترقیاتی کام تھے اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کی اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے والے الیکشن کے لیے بھی اب مشاورت شروع کر چکے ہیں۔ اجلاس میں شریک یونین کونسل دہے کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں لیگی حکومت کی جانب سے کیے گئے ترقیاتی کام ریکارڈ ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ ڈیلی بیسس پہ ایک یو سی کا وزٹ کر رہے ہیں، ان کو بلا رہے ہیں، ان سے ڈسکس ہے کہ ان کو ہم اگلا الیکشن کیسے جیتنا ہے۔ الیکشن 2018 کے جو آنے والا الیکشن ہے اس کے مشوراتی جو ہے اس کے بارے میں ایم پی اے محمود الحسن چیمہ نے کہا کہ حلقے کے باقی تحصیلوں میں بھی عام انتخابات کے حوالے سے اجلاس کریں گے۔ کیمرامین ولید بلوچ کے ساتھ عاصم صدیق، روحی، رحیم یار خان۔ اب آپ کو بتائیں میاں والی سے، جہاں پر شہریوں کی کثیر تعداد نے سابق ایم این اے حمید حیا خان روکھڑی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقاتیں کی، اپنے اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل پیش کیے۔ انتخابات کا موسم قریب آتے ہی میاں والی کے سیاستدانوں کے ڈیرے بھی آباد ہو گئے ہیں، جن میں ضلع کونسل گل حمید خان روکھڑی کے بیٹے اور سابق ایم این اے حمید حیات خان سے ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے ملاقاتیں کی۔ شہریوں نے انہیں سیوریج، صفائی، سڑکوں اور واٹر سپلائی کے مسائل سے آگاہ کیا۔ بعض شہریوں نے ملازمت دلانے کے لیے بھی درخواستیں پیش کی۔ کئی افراد کے مسائل زمینوں سے متعلق تھے۔ سابق ایم این اے نے مسائل کے حل کے لیے احکامات اور ہدایات جاری کی۔ ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشنر ظفر اقبال حسین اور ریجنل الیکشن کمشنر بہاولپور منصر عباس کا تحصیل رحیم یار خان الیکشن کمیشن کا دورہ۔
ضلع رحیم یار خان میں الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری ظفر اقبال حسین اور ریجنل کمشنر منصور عباس مسرت نے الیکشن کمیشن کی چاروں تحصیلوں کی طرح تحصیل رحیم یار خان کے دفتر کا بھی دورہ کیا۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وسیم اختر بھی ہمراہ تھے۔ ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن ظفر اقبال حسین کا کہنا تھا کہ وہ رحیم یار خان کے اسٹاف کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، عام انتخابات بروقت کروانے کے لیے پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ اور چند دنوں میں ہم جو ہمارے ریٹرننگ افسر ہیں جو ہم نے تعینات کرنے ہیں ان کی تعیناتی بھی ہو جائے گی، ان کی ٹریننگ بھی ہم مئی کے پہلے ہفتے میں مکمل کر دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ پولنگ سٹاف کی ٹریننگ بھی شروع ہو جائے گی۔ جبکہ ریجنل الیکشن کمیشن آفیسر منصور آفاق کا کہنا تھا کہ عملے کی تربیت چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ ضلع رحیم یار خان میں الیکشن کمیشن کے 250 سینٹرز بنائے جائیں گے۔ پہلے ہمارے پاس 122 اس ضلع میں ڈسپلے سینٹر تھے، اب ہم نے 250 کے قریب جو ہے نا وہ مکمل کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہر حلقے میں علیحدہ ریٹرننگ آفیسر تعینات کیا جائے گا تاکہ 2018 کے الیکشن شفاف اور بروقت ہوں۔ کیمرامین ولید بلوچ کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ دوسری جانب جناح ہارون آباد میں منافع بخش کاشت کپاس کے موضوع پر معلوماتی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ زراعت کے افسران، ڈپٹی ڈائریکٹر چودھری مقصود اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ ایف ایس سی بہاول نگر ریجن کے زیر اہتمام سیمینار میں مہمان خصوصی قائم مقام چیئرمین میونسپل کمیٹی ملک محمد ریاض نے کہا کہ کپاس ہماری نقد آور فصل ہے جو علاقے سمیت ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ منافع بخش کپاس کی کاشت پر سیمینار سنگ میل کی درجہ رکھتا ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر کاشتکار اپنی اور قومی معیشت کی مضبوطی کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ سیمینار میں ماہرین ظہور احمد، ڈویژنل مینیجر اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ نمل لاوا پیٹرول پمپ خانپور کے قریب آئل ٹینکر الٹ گیا۔ 6 گھنٹے آپریشن کے بعد ریسکیو نے اسے کلیئر کروا دیا۔ خانپور قومی اشارہ پر فرانس آئل ٹینکر کراچی سے فیصل آباد کی طرف جاتا ہوا نمل لاوا پیٹرول پمپ کے قریب آبادی میں الٹ گیا۔ موٹر وے پولیس نے لوگوں کو متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایت کی۔ ریسکیو 1122 نے 6 گھنٹے کارروائی کرنے کے بعد ٹریفک کا نظام بحال کر دیا۔ ریسکیو آپریشن میں موٹر وے پولیس، پنجاب پولیس اور ریسکیو 1122 اور خانپور میونسپل کمیٹی کی فائر بریگیڈ ٹیم بھی شامل تھی، جس کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر احمد رضا نے کی۔ ٹینکر الٹنے سے 60,000 لیٹر آئل گلیوں میں پھیل گیا، جس پر امدادی ٹیموں نے فارم کا امیزہ اور ریت ڈال دی۔ ٹینکر کو کرین کی مدد سے ہٹا کر روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے نیسلے نیڈو فورٹی گرو، سیکھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ نیسلے، گڈ فوڈ گڈ لائف۔ تو کیوں نہ ایک کپ اور ہو جائے بدر ٹی۔ گولڈن پرل ڈیلی فیس واش کلینزنگ سسٹم کی کمپلیٹ رینج، تو اب سے نو ٹو آل دا اسکن پرابلمز۔ گولڈن پرل فیس واش کلینزنگ سسٹم فار فریش اینڈ بیوٹیفل اسکن۔ سب کوالٹی پینٹ ہی مانگتے ہیں، اس لیے تو ہمیشہ اپنی دکان پر ڈائمنڈ پینٹس رکھا ہے، جس پر دکان والے کو بھی یقین اور مکان والے کو بھی اعتماد۔ ڈائمنڈ ہے تو کیا غم ہے۔ ڈائمنڈ پینٹس، the number 1 selling national brand۔ گولڈن پرل ڈیلی فیس واش کلینزنگ سسٹم کی کمپلیٹ رینج، تو اب سے نو ٹو آل دا اسکن پرابلمز۔ گولڈن پرل فیس واش کلینزنگ سسٹم فار فریش اینڈ بیوٹیفل اسکن۔ نیسلے نیڈو فورٹی گرو، سیکھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ نیسلے، گڈ فوڈ گڈ لائف۔ تو کیوں نہ ایک کپ اور ہو جائے بدر ٹی۔ دنگل کے ڈھول پر فتح کا اعلان، ہار جیت سے بڑھ کر پریت کا پیغام۔ بات ثقافتی میلوں کی ہو یا مقامی کھیلوں کی، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔ اپڈیٹ کریں ملتان سے، جہاں پر حویلی مرید شاہ میں امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت کے سلسلے میں چراغاں اور آتش بازی آپ کو اتارے ہیں ملتان سے، جہاں پر عقیدت مندوں کی حویلی مراد شاہ آمد جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید انور سے۔ جی جنید۔ جی بالکل، حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے صرف حویلی مراد
के अंदर जो अकीदतमंद है उनकी आमद का सिलसिला जारी है, जबकि यहाँ जो है अहले इलाका और हवेली मुराद शाह के जो मकीन है उनकी जानिब से यहाँ चिरागा और जो आतिशबाजी का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है, जबकि यहाँ मुखैर हजरात की जानिब से जो है न्याज का और मीठे शरबत का भी इंतजाम किया गया है, जबकि न्याज और शरबत पीने के लिए यहाँ के जो मकीन है जो अकीदतमंद है वो उसको पीने के लिए अपने आप को उस शरबत को पीने के लिए अपने लिए बायस रहमत कर रहे हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि यहाँ 12 बजे के करीब 3 जुलूस जो है वो हवेली मुराद शाह आएंगे, जबकि यहाँ एक जो बड़ा क्राउड होने के बाद यहाँ एक आतिशबाजी का भी एहतमाम किया जाएगा, और जबकि जो फिजा के अंदर जो है वो गुब्बारे भी छोड़े जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि यहाँ बच्चे जो हैं वो हजरत इमाम हुसैन की जो यौम विलादत है, हजरत अब्बास हुसैन रज़ी अल्लाह के जो यौम विलादत के अवसर बेहद खुश हैं और वो इस जश्न मना रहे हैं, जबकि वो बच्चों की खुशी की इंतहा ये है कि वो वक्फे वक्फे से यहाँ जो आतिशबाजी में भी हिस्सा ले रहे हैं और जो चिरागा है उसके साथ जो है अपनी सेल्फियाँ बनाकर बेहद खुश हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनेद हमें अपडेट करने का। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए नेस्ले नीडो फोर्टिग्रो, सीखते जाओ बढ़ते जाओ। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। तो क्यों ना एक कप और हो जाए बदर टी। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। पेंसिल और स्केल तो सब यूज करते हैं, किस जगह क्या बनेगा, कौन सा कलर कहाँ सूट करेगा, मैं समझता हूँ। आई ओनली ट्रस्ट डायमंड। डायमंड है तो क्या गम है। डायमंड पेंट्स, द नंबर 1 सेलिंग नेशनल ब्रांड। गोल्डन पर्ल डेली फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम की कंप्लीट रेंज, तो अब से नो टू ऑल द स्किन प्रॉब्लम्स। गोल्डन पर्ल फेस वॉश क्लेंजिंग सिस्टम फॉर फ्रेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। नेस्ले नीडो फोर्टिग्रो, सीखते जाओ बढ़ते जाओ। नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। तो क्यों ना एक कप और हो जाए बदर टी। दंगल के ढोल पर फतह का ऐलान, हार जीत से बढ़कर प्रीत का पैगाम। बात सकाफती मेलों की हो या मकामी खेलों की, रोही का हर रंग आपके संग। सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन। कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब। दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग। मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान। डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका। रोही का हर रंग आपके संग। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी,
वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताप, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। मुल्तान मुल्तान से, जहां पर हालिया बारिशों से गंदम की फसल तैयार होने का खदशा। मुल्तान में गंदम की फसल कटाई के लिए तैयार है। फसलों में पानी जमा होने से काश्तकार परेशान। तफसीलात जुनेद अनवर की। मुल्तान में होने वाली मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया, जिसकी वजह से गंदम की तैयार फसल शदीद मुतासर हुई। कटाई का अमल भी चंद रोज के लिए रोक दिया गया है। बारिशें हुई हैं साउथ पंजाब में खास तौर पर, तो उसकी वजह से हमारी गंदम जो है वो अफेक्ट हुई है, मुतासर हुई है, और बहुत जगह जो अंधेरी चली है उससे जो है हमारी जो है ना गंदम लेट भी गई है। ज़री माहिरीन का कहना है कि मजीद बारिश हुई तो गंदम को फंगस लग सकती है, जबकि तैयार फसल गीली हो जाने से पैदावार और क्वालिटी दोनों मुतासर होंगी। एटमॉस्फेयर में नमी होगी तो फफूंदी जो है ना उसके फलने फूलने के चांसेस होते हैं, स्पोर जो है ना एक्टिव हो जाते हैं। ज़री माहिरीन ने काश्तकारों को गंदम में नमी कम होने पर फौरी हार्वेस्टिंग का अमल शुरू करने का मशवरा दिया है। गंदम की कटाई के बाद गंदम को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किया जाए ताकि गंदम को बारिश का पानी मजीद मुतासर न कर सके, और जितनी जल्दी मुमकिन हो गंदम को स्टोर में पहुँचा दिया जाए। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। उधर मुजफ्फरगढ़ में रवां साल जिला में 1,31,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी, जिसके लिए 13 लाख से ज्यादा बारदाना की बोरियां काश्तकारों को दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर की रोही से खसूसी गुफ्तगू, उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बाहर के करीब दरखास्तें हमें दोनों तहसीलों में मौसूल हो चुकी हैं और उनको हम उनका डेटा एंट्री कर रहे हैं, और वो डेटा एंट्री जो है वो PITB को और पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी को हम भेज रहे हैं, जो कि ग्रोअर लिस्ट के मुताबिक उसको मैच करेगा। और 21 और 22 को वेरिफिकेशन होगी इन लिस्टों की, 23 को कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होगी, और जो वो डिसाइड करेंगे कि फी एकड़ हमने 5 बोरियां देनी है, 6 बोरियां देनी है, 7 बोरियां देनी है, 8 बोरियां देनी, वो इंशाल्लाह कोटे के मुताबिक जो भी वो वहाँ से पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक हम देंगे। लेकिन इसमें जो बेहतर बात है वो ये है कि इस दफ़ा जो भी हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर पे एक किसान आ रहा है, हम सबको बारदाना देंगे जिसका उस लिस्ट में गिरदावरी वाले में नाम। अब खबर शामिल करते हैं एहतजाज के हवाले से। डेरा गाजी खान में महकमा ज़राअत मुलाजमीन की जानिब से 26वें रोज में मुतालबात के हक में डायरेक्टर ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। इस हवाले से देखते हैं शेर अफगन बुस्तार की ये रिपोर्ट। महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट इंस्पेक्टर की जानिब से 26वें रोज भी मुतालबात के हक में हड़ताल की गई। डायरेक्टर ज़राअत के ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया। मौका पर मुलाजमीन ने सेक्रेटरी ज़राअत के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में नारे भी लगाए। एहतजाजी धरने में बैठे ज़राअत अफसरान का कहना है कि महकमा ज़राअत के मुलाजमीन के लिए स्केल अपग्रेडेशन सर्विस स्ट्रक्चर की बहाली और अलाउंस का ना मिलना मसला बन चुका है। जेडे अल्फाज सेक्रेटरी साहब वरतन के मैं फील्ड असिस्टेंट इन्हों के धरने ते इन्हों के हड़ताल ते फायरिंग करा सा। असा सारे दोस्त ई गाल दी पुरजोर मजम्मत करेंगे। महकमा ज़राअत के मुलाजमीन से दीगर महकमों के काम करवाए जाते हैं मगर अलाउंस नहीं दिए जाते। हमारे सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए। दूसरा है जो दूसरे महकमों के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें अगर वो काम कराना चाहते हैं तो खुद वो अलाउंस लेते हैं और हमें नहीं देते, अलाउंस दिया जाए। धरने में बैठे फील्ड असिस्टेंट्स का कहना है कि सेक्रेटरी ज़राअत की जानिब से लाहौर में धरने की सूरत में फायरिंग कराने की धमकी दी गई है। गुज़श्ता 25 रोज से हड़ताल में बैठे महकमा ज़राअत के फील्ड असिस्टेंट्स और इंस्पेक्टर्स का कहना है वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि महकमा ज़राअत के मुलाजमीन के मसाइल फौरी हल करें। बसूरत दीगर 23 अप्रैल को लाहौर में धरना देंगे। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ शेर अफगन बुजदार, रोही, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती का मामला हल ना हो सका। यूनिवर्सिटी गेट पर 26वें रोज भी तुलबा का धरना जारी है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। DG खान गाजी यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से यूनिवर्सिटी बचाओ मुस्तकिल वाइस चांसलर लाओ मुहिम जारी है। गुज़श्ता 25 रोज से धरने में बैठे तलबा ने यूनिवर्सिटी गेट से कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली और कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस मौके पर तलबा ने पंजाब हुकूमत से गाजी यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात करने का मुतालबा किया। DG खान की इकलौती यूनिवर्सिटी है लेकिन इतना कोई भी सीखा नहीं। असा मुस्तकिल 26 डी किलो एहतजाज करें दे पियो, ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा है ना ही कोई सरकारी बंदे हैं।
तलबा का कहना था कि लाहौर की तमाम यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वीसी तैनात किए जा सकते हैं, तो डीजी खान डिवीजन की अकलौती गाजी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर क्यों तैनात नहीं किया जा सकता? हमारा मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी में एक मुस्तकिल वाइस चांसलर तैनात किया जाए। लेकिन अगर हम यहाँ पे आके कोई फैसिलिटीज देखें तो कोई फैसिलिटीज नहीं है। स्टूडेंट वहाँ पे भारी फीसेस देते हैं, लेकिन ना ही तो वहाँ पे पानी है, ना ही वहाँ की इमारत है। तलबा का कहना है कि गाजी यूनिवर्सिटी में तलबा से भारी फीसें लिए जाने के बावजूद सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गाजी यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल वाइस चांसलर का मामला फिलफौर हल किया जाए। मामला हल ना हुआ तो सोमवार से एहतजाजी कैंप को भूख हड़ताली कैंप में तब्दील कर दिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ शेर अफगन बुजदार, रोही, डेरा गाजी खान। अपडेट करें मुल्तान से, जहां पर थाना हरम गेट पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर थाना हरम गेट पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शख्स से आतिशबाजी का सामान बरामद हुआ है। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर थाना हरम पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं मजहर खान से। जी मजहर खान, बताइएगा ये शख्स कौन है? जी बिल्कुल, शनाख्त मोहम्मद इमरान से नाम है और उससे आतिशबाजी का सामान 360 डब्बी चाइना पटाखा की वो बरामद हुई हैं। और ये कार्रवाई थाना हरम गेट के एएसआई कसवर हुसैन ने टीम के हमरा की। पुलिस हुकाम का कहना है कि मोहम्मद इमरान आतिशबाजी का सामान खरीदो फरोख्त में पहले भी मुलविस रहा है और अब खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उससे मजीद तहकीकात भी की जा रही है कि शहर में किस किस जगह आतिशबाजी का सामान मजीद फरोख्त किया जाता है। जी मजहर खान, ये भी बताएगा कि कितनी मालियत का सामान बरामद हुआ है इस शख्स से? जी हजारों रुपए मालियत का ये सामान है जो बरामद हुआ है और पुलिस हुकाम का कहना है कि ये पूरा एक नेटवर्क है जो आतिशबाजी सामान फरोख्त करता है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और उसी नेटवर्क का हिस्सा ही है ये मोहम्मद इमरान। इसकी गिरफ्तारी के बाद मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया मजहर खान हमें अपडेट करने का। मुल्तान के नवाही इलाके बस्ती ढींगेवाली में खावंद ने मुबैना तौर पर बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक थाना बुदला सनत के इलाके बस्ती ढींगेवाली के रिहायशी मोहम्मद नवाज ने अपनी 65 साला बीवी को कत्ल कर दिया। इतला पर पुलिस मौका पर पहुंची और मकतूला की लाश तहवील में ले ली। पुलिस ने मोहम्मद नवाज को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस और अहले इलाका के मुताबिक मोहम्मद नवाज का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, ताहम तहकीकात के बाद मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फजल पाक खानेवाल के सामने कचरे के ढेर से नौजवान की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खानेवाल फजल पाक के सामने कूड़े के ढेर पर नामालूम नौजवान की लाश को देखकर अहले इलाका ने रेस्क्यू टीम को इतला की। रेस्क्यू एहलकारों ने लाश को रस्सियों की मदद से निकालकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाश को कूड़े में दबाया गया था। नौजवान का मुंह सिर्फ कचरे से बाहर था, जबकि इसका हाथ और पांव बंधे हुए थे। सिटी पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है, ताहम लाश की शनाख्त ना हो सकी। मियांवाली थाना सदर पुलिस की नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, 10 अफराद को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया गया। SHO थाना सदर के हवाले से कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में मियांवाली के नवाही इलाके चा बहादुर वाला के रिहायशी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। अब आपको बताएं बहावलपुर से, जहां पे मासूर अफराद के लिए बहावलपुर से बड़ी खबर। सफरी सहूलियात और किरायों में 50% कमी मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। 200 से ज्यादा अफराद को कार्ड्स भी दिए गए। बहावलपुर में कानों से बहरे, गूंगे और आंखों से मजदूर अफराद के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सफरी कार्ड तकसीम की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर राना सलीम अफसर ने कहा कि मजदूर अफराद को सफरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। उनका कहना था कि मजदूर अफराद मुआशरे का हिस्सा हैं, उनको हर तरह की सहूलियात फराहम की जाएंगी। इनकी एक स्पेशल डिमांड थी कि हमें जो सफरी सहूलत दी जाए उसमें एक स्पेशल कंसेशन दी जाए। हमने इसमें भी काफ़ी डेलिब्रेशन की और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि हम इनको एक सफरी सहूलत कार्ड जो है वो इशू करें। तकरीब में 200 से ज्यादा मजदूर अफराद को सफरी कार्ड जारी किए गए। पंजाब भर में बहावलपुर जिला ने सबसे पहले मजदूर अफराद की सहूलत के लिए ये कार्ड जारी किए, जिस पर अवाम का कहना था कि हुकूमत का ये अच्छा कदम है। जिस कार्ड की वजह से इनको जो है ना किराए में 50% रियायत होगी और ये जो है रियायत
ये तमाम ट्रांसपोर्ट, उसमें बसेस भी शामिल है, उसमें ट्रेन भी शामिल है। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली और सेक्रेटरी RTA भी मौजूद थे। कैमरामैन अकरम शहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। अब आपको बताएं मुल्तान से, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सज्जादा नशीन मखदूम अबुल हसन गिलानी की दरबार मूसा पाक शहीद पर हाजिरी। मखदूम वजाद हुसैन गिलानी की आखिरी आरामगाह पर फूल चढ़ाए। आपको बता रहे हैं मुल्तान से, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और सज्जादा नशीन मखदूम अबुल हसन गिलानी की दरबार मूसा पाक शहीद पर हाजिरी। इस हवाले से देखते हैं अमजद मलिक की ये रिपोर्ट। दरबार मूसा पाक शहीद के सजादा नशीन मखदूम वजाद हुसैन गिलानी की कुलखानी का एहतमाम MCC ग्राउंड में किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात समेत हर मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कुलखानी में शिरकत के बाद साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मखदूम अबुल हसन गिलानी और साबिक रुकन सूबाई असम्बली अहमद मुजतबा गिलानी ने दरबार मूसा पाक शहीद पर हाजिरी दी। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और सजादा नशीन अबुल हसन गिलानी ने मखदूम वजाद हुसैन गिलानी की आखिरी आरामगाह पर फातह खानी की। साबिक वजीर आजम ने वजाद हुसैन गिलानी की तुरबत पर फूल चढ़ाए और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ भी की। दरबार मूसा पाक शहीद के सजादा नशीन मखदूम अबुल हसन गिलानी ने दरबार की गद्दी संभाल ली। इस मौके पर मुरीदैन, मर्द व खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। दरबार पर मुरीदैन ने हाजिरी दी और सजादा नशीन अबुल हसन गिलानी से अकीदत व एहतराम का इजहार किया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने